What is new? देखने का तरीका बताने वाला नया बताने वाले तो एक से एक माहिर है. mindset, learning mindset, What is new? time, movement, What is new? आपकी करंट सिचुएशन situation. You are new. Right? You are new. Each morning you are very new. As a result, how you look at a topic changes. अगर ये सेम टॉपिक आप फ्रेश ग्रेजुएशन के बाद एमबीए में पढ़ोगे तो अगर इंटरेस्टिंग लगा तो काफ़ी रोमांटिक लगेगा. अदरवाइज नींद आ जाएगी. बट आफ्टर अ फ्यू years when you read it again it's very different for you. Today when you listen to it, very different. So never ever decide about attending a training or any program based on ये तो मैंने सीख रखा है. That is not important at all. Right. Right. Because whenever you're learning it again, you are new. You're a very different person. Right. And how you relate to it will change dramatically. In fact, you should test yourself. Okay, let me try learning this again. इस बार मुझे क्या समझ आता है? It's like a book. There are some people who read the same book many times. Why do they do that? ये थोड़ी है कि वो स्टोरी भूल गए थे दोबारा से स्टोरी रिवाइज कर रहे हैं. कुछ लोग मूवीज बार बार देखते हैं. पर्सपेक्टिव इज डिफरेंट. राइट. तो ये मेरे साथ हुआ कुछ टाइम मूवीज के केस में. सो माई वाइफ अनुराधा एंड माई सन समृद्ध they can watch the same movie so many times that it's so frustrating. Right. तो अभी पीछे वो 83 आई तो वो देखते ही जा रहे हैं. कितनी बार देख चुके हो? और हर बार देखें ऐसे जैसे पहली बार देख रहे हैं. चक्कर क्या है? गाना है तो डांस करें. तो I asked my wife, sometimes you have to ask your better half for enlightenment. Sometimes. Right. अरे बार बार क्यों देख रहे हो? स्टोरी अभी तक समझ नहीं आई क्या है? तो देखने से पहले ही मालूम है कि वर्ल्ड कप जीतेंगे. राइट. चलो एक बार देख लिया आपने कि भाई रणबीर कपूर अच्छा एक्टर है या जो भी है. What she said was very poignant. It made me reflect. She says each time I watch it, I don't watch the movie or the story or the script or anything. I'm watching it for the emotions or how it makes me feel when I watch it. Not for the story. How it makes you feel. Very nice. Right. So suddenly my idea about watching a movie changed. About reading a book changed. वेरी नाइस. So recently I picked up a book. तो पढ़नी शुरू की. बहुत ही जल्दी खत्म हो गई. Like a breeze. और जब खत्म हुई ना तो ऐसे लगा यार क्या यार खत्म हो गई यार. It felt like that. Then without waiting I decided to restart. 3 दिन में खत्म हुई. 4th day दोबारा स्टार्ट करी. द सेम बुक. Same book. मैं पहली बार किया है. Never tried it before. After this lesson from my wife. Right. This time when I read it, I was a new person. वाओ. Right. Because मैं एक बार पढ़ चुका हुआ था वो किताब. This time when I read it, I got new emotions. I connected better. The first time I was reading for the story. क्यूरियोसिटी Right. कि हाँ अच्छा अब next क्या आएगा, अब next क्या आएगा, अब next क्या आएगा. It might appear like a very boring thing. कि एक ही चीज़ को बार बार करना. ये तो सीख लिया subject. Why do you need to do it again? Same is with these topics. They might appear like यार ये सब सुन रखा है, ये सब देख रखा है. But the fact that you are changing every single day, you will take back something new because you are new. Right. When you take that back, start applying it to your business.
you will experience something new in your business. Whether it's the way you negotiate, यहाँ पर I'm sure आप में से 2-3 लोग होंगे जो बड़ी solid negotiation करते होंगे हर चीज़ में। यार इसमें तो मैं मास्टर हूँ, इसमें क्या पढ़ाएंगे? बट हो सकता है कि एक टॉपिक, एक कॉन्सेप्ट, फ्रेमवर्क का कुछ पार्ट आपको क्लिक कर जाए। अगर ये हो गया तो मास्टरी का भी एक लेवल ऊपर आ जाएगा। सो यू हैव टू पिक व्हाट यू आर रेडी टू पिक, which is why in classes like these you can't copy each other. क्या तूने क्या सीखा मैटर ही नहीं करेगा, मैंने ये नहीं सीखा, doesn't matter. Okay, so this session today, like all sessions, we will begin with basically deconstructing the topic कि भाई ये effective negotiation होता क्या है, कौन से खेत की मूली है ये. Then we will learn a few frameworks, right? Some theory. I think theory is very important. तो कुछ अच्छे लोगों ने रिसर्च कर रखी है. रिसर्च किसको किया है? आप जैसी कंपनीज को, हज़ारों लोगों को. तो अगर उनकी डिस्टिल्ड लर्निंग हमें मिल जाए तो क्या खराबी है? And then we will, like every time, we will know more about a leader who has been an exceptional negotiator in this case, right? जिसने अपनी negotiation skills के बलबूते पे काफ़ी amazing चीज़ें accomplish की हैं. We'll learn about him, right? So, let's start. So these are the topics we'll cover. Don't worry if you can't read, we'll anyway cover them. But the learning objectives are going to be understanding negotiation skills. What are the elements of effective negotiation? And purely from a theoretical perspective, what are the types of negotiations? Just so that when you get into your next negotiation, you know कि आप कौन सी वाली negotiation कर रहे हो, उसे कैसे करना चाहिए. Negotiation एक बहुत in-depth subject है जो कि बहुत अच्छे law schools में पढ़ाया जाता है. It's not necessarily only a business topic. In fact, it's a much bigger legal topic than it is a business topic. So much so that the Harvard Law School has actually created a massive website. Huge website, you should check it out. Harvard Law School, not the business school, but the law school, on this subject. उस पर latest research आपको मिलेगी. If you ever want to attend an executive program, a negotiation, तो किसी B school का मत attend करना, law school का करना, because their knowledge on the subject is a lot more deeper. Right. But that's if you're academic in intent, and you just want to know how lawyers think when it comes to negotiation, because वही सबसे ज़्यादा चीज़ें negotiate करते हैं. ज़्यादातर negotiation contracts पे होती है. If you notice, it's tough to arrive at winning negotiations, जिसमें everybody wins. Most of us think you only negotiate on price. Right? No. So many things to negotiate. So many things. Even in a very basic business contract, price should be the last thing you negotiate. Right? You have to negotiate payment terms. You have to negotiate timelines of delivery. हमें लगता है प्राइस हो गया, बस सब हो गया. हाँ, सब बाकी हो देख गया. लेना. हाँ, बाकी सब देख लेंगे. रेट सेट हो गया. आप बोले तो बाकी देख लेना, तो मैंने रेट तय कर दिया. Exactly. बाद में वो कई चीजें बड़ी हालत खराब होती है. बड़ी डिलीवरीज टाइम पे नहीं जाती. कमर्शियल टीम्स सारे टर्म्स को फाइनल करती हैं, प्राइस सबसे लास्ट में डिस्कस सबसे लास्ट. सबसे लास्ट में डिस्कस तब तक इतना कमा देते हैं आपको हैं. कि आप कुछ भी प्राइस देते हैं. सबसे लास्ट में प्राइस होता सबसे लास्ट में प्राइस की बात करते हैं. है. बट दैट एज यू ऑल्सो हैव कि अगर सबसे लास्ट में प्राइस हो रहा है ना, और खूब सारी मेहनत गई है इन टर्म्स ऑफ फिगरिंग आउट ऑल द टेक्निकल टर्म्स ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट, Stickiness. तो स्टिकीनेस बढ़ जाती है. तो आप भी मांग सकते हो यार ये काम के लिए तो ज़्यादा पैसा चाहिए. उनके लिए भी वापस जाना मुश्किल हो जाता है. सेम वे. राइट. सो प्राइस इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ नेगोशिएशन, but it's not the most important.
You must have a goal कि मुझे profit कितना कमाना. That's fine if it's a business deal. Right. But is price the only lever? No. What is the equation of profit? Revenue minus cost. Right. Price is only an indicator of revenue. Top line. Correct? But profit आने से पहले इतनी सारी लाइनें हैं जो हम नेगोशिएट नहीं करते. Right. What kind of people you'll end up deploying, what kind of timelines for delivery, whether it's a product or a project or a service, doesn't matter, is worth negotiating. Payment terms, absolutely worth negotiating. Sometimes big companies bully us. कि हमारी तो यही है जो स्टैंडर्ड टर्म्स. ट्रस्ट में फिर भी नेगोशिएट हो जाती है. इफ दे रियली थिंक यू आर गुड एंड यू पुट योर फुट डाउन एंड से कि नहीं सर हम तो नहीं कर पाएंगे, अच्छा चलो विल गेट एन एक्सेप्शन. ये हमेशा मालूम होना चाहिए बिग कंपनीज हैव उनके SOPs बने होते हैं एक्सेप्शन के, हर चीज़ के. एक्सेप्शंस आर देयर. So every single item in how you do your work with a client or an employee or anybody for that matter is negotiable. सबसे पहले तो ये mindset create करना. Everything on the table is negotiable. And price should not be the first point of discussion. Even though you have to learn to put on the table very, very quickly what you want out of the deal, and we'll learn from Bob Iger how he does that. कैसे उसने डिज्नी में ये किया कि पहली मीटिंग में अपफ्रंट मोटा मोटा ये 3 चीजें मेरे को चाहिए. That's why I'm doing this deal with you. If we agree on those broad contours of the deal, then we will go deeper. Otherwise, no point even starting the negotiation. अगर philosophy of the deal ही गलत है और उस पर alignment नहीं है, it's a waste of time to negotiate. So for example, if there's a minimum transaction size that you work on, it's better to share that upfront rather than later. कि सारे proposals बन गए, सब कुछ हो गया, 2, 3, 4 महीने के बाद कह रहे हैं ये मेरा प्राइस है. That's stupidity, not an intelligent way. Share the range upfront. Right. कोई दुकान पे भी आए, क्या खरीदने आए हो, थोड़ा सा एम्बैरेसिंग लगता है पूछना बजट है कि नहीं, पूछ लो. राइट. प्राइस टैग्स भी इसलिए लगाए जाते हैं किसी भी दुकान में. भाई आप LV के शोरूम में चले गए एंड इफ यू कांट अफोर्ड, लाइक आई कांट अफोर्ड, तो उस पर प्राइस टैग्स देख लो पहले, देन डिसाइड हाउ मच टाइम यू वांट टू स्पेंड इन द शोरूम. सबसे पहले बैग का ही देख लो. या उससे पूछ लो दुकान वाले से, भाई इससे सस्ता कुछ है कि नहीं सर ये स्टार्टिंग लेवल है. ठीक है, आई जस्ट केम टू लुक एट द शॉप, इट्स फाइन. So you must have that attitude where you lay down exactly what you want from a deal up front, and then spend whatever it takes, weeks and months, to negotiate the finer details. That's not a problem. But philosophy of the deal, when you're negotiating, the word deal is always going to be on the table. कोई deal हो रही है तभी negotiation है. Philosophy of the deal has to be decided very early, very early. So let's look at this topic. Negotiation skills are a set of behaviors that enable effective bargaining. So it's a set of behaviors, how you behave, जिनकी वजह से effective bargaining हो जाती है. Generally between two parties, in order to achieve an agreed upon desirable outcome. Now again I am re-emphasizing this part. हम इसको बार बार भूलेंगे. ये जो पार्ट है ना, agreed upon desirable outcome, agreed upon
डिजायरेबल आउटकम, मतलब कि नेगोशिएशन स्टार्ट होने से पहले अग्रीड अपॉन डिजायरेबल आउटकम टेबल पे होना चाहिए. Right. That's when you're going to be effective in negotiation. A negotiation process generally includes a discussion. Of course, discussions happens. Offers होती हैं और counter offers होती हैं. एक offer हुआ, counter offer, offer, counter offer, and it's not just about price. Many other terms. And if the negotiation is successful, then a final agreement. So सबसे पहली चीज़ इस बात को समझना कि you should not try to do it in a hurry. It's a process. इस process को respect करना बहुत ज़रूरी है. क्वेश्चन सर. Yes. सर ये डिजायरेबल आउटकम होना चाहिए. सर ये तो दोनों का डिजायरेबल आउटकम अलग अलग हो सकता है. बिकॉज सपोज मैं आपसे एक नेगोशिएट कर रहा हूँ. अगर आपके दोनों के डिजायरेबल आउटकम अलग अलग हैं तो नेगोशिएशन हो ही नहीं पाएगा. नहीं सर, सपोज एक एक हाइपोथेटिकल डिस्कशन है सर कि मेरी टीम ने आप एक वेंडर है, आपसे एक डिस्कशन शुरू कर लिया. नाउ दे आर स्टक and now I am being invited in that meeting or for negotiate something. Now if I will put on that boss I want this to be discussed, and he says boss this I cannot do, I'm sorry, then sir वहाँ तो खत्म ही हो जाएगा. ब्रेक ही हो गया ना. हाँ. हाँ, बट व्हाई डू दैट एक्सरसाइज मच लेटर? वो स्टार्टिंग में कर लो. मतलब कहने का मतलब इफ यू आर गोइंग टू गेट इनटू अ डील, आपका क्या प्रोडक्ट है? मार्बल सर. मार्बल. ठीक है. अब आपको एक कस्टमर नजर आता है, राइट? उस कस्टमर को आपको बेचने हैं मार्बल. घर बनाने के लिए बेचते हो या क्या करने के लिए? घर के लिए. ठीक है. आपको आइडिया लग गया कि कितने स्क्वायर फीट का घर है, मोटा मोटा. आपकी बेसिक ड्यू डिलिजेंस होगी, सवाल पूछोगे. एंड यू हैव अ सर्टन सॉर्ट ऑफ ब्रॉड विद योर एक्सपीरियंस, यू नो कि आप 3-4 चीज़ें फटाफट कागज़ पे लिख सकते हो. मोटा मोटा पर स्क्वायर फीट इतना खर्चा आएगा अगर ये वाली वैरायटी का मार्बल, ग्रेड का मार्बल लगाते हो आप, राइट? इतने टाइम में काम हो जाएगा. ये पेमेंट टर्म्स हैं आपकी मोटी मोटी, राइट? सो दिस इज योर डिजायर्ड आउटकम, राइट? तो व्हाई आर यू होपिंग दैट यू विल अराइव एट द डिजायर्ड आउटकम आफ्टर एवरीथिंग इज डन? नहीं सर, ये मेरी साइड से. अब कस्टमर की साइड से कुछ अलग है. तो हाँ. सपोज मैंने ये बोला. फाइन. सो यू पुट इट आउट. यू से दैट सर जो आप मार्बल सीख कर रहे हो वो ये है. राइट. दिस विल बी द बेस्ट फॉर यू. राइट. इट विल कॉस्ट दिस मच. ओके. डू यू हैव दिस मच बजट? हाँ, बजट ही. गुड. थोड़ा बहुत अगर कम हुआ तो मैं कम करा दूंगा, वेस्टेज नहीं होने देंगे, बट इतना खर्चा आएगा. टाइमलाइंस ये रहेंगी. डू यू हैव दिस मच टाइम? नहीं, टाइम नहीं है. अच्छा, कितना टाइम है? राइट. अब उसने बोला 15 दिन. हाँ. मैं बोल रहा हूँ 2 महीने से पहले आ ही नहीं सकता. हाँ. Then- ब्रेक हो गया ना फिर, हाँ. राइट? फिर नेगोशिएट किस चीज़ पे होगा? क्योंकि डिजायरेबल आउटकम तो दोनों के हमेशा अलग है. What was your design outcome? To have a deal with him with good profits. Agreed. That's the final goal. I agree. But desirable outcome तो अगर सर सपोज आपने एक चीज़ तो अलग होगी. सर सपोज मैंने बोला ये प्राइस है, उसको देना है मुझे और उसको लेना है. अब लेकिन फर्स्ट गो में नॉर्मली व्हाट आई हैव सीन, दे ऑलवेज से बस बजट तो नहीं है. मतलब वो एक ही बात बोलता है, बस बजट नहीं है, लेना यही है, आप दे सकते हो. अब मैंने उस टाइम बोल दिया नहीं दे सकता, खत्म हो गई बात. खत्म हो गई बात. लेकिन अगर सर कुछ हम उसको और माइंड पे सेल करना शुरू करते तो शायद वो उसका बजट अपने आप से मेंटली इंक्रीज करता. That's selling. That's not negotiating. Right. So negotiation starts the moment you both have decided कि चाहिए क्या. उसके बाद negotiation start होती है. उससे पहले तो selling है. Right. That is the desired outcome कि ये particular quality का मार्बल चाहिए. सर उसने बोला मेरा बॉस मेरे को लेना है बट ये बजट नहीं है. हाँ, तो जरूरी थोड़ी है सारी डील्स होंगी. All deals are not profitable deals. Please remember that. ये एक बहुत बड़ा मिथ है. हम फनल देखते हैं ना, सेल्स फनल, तो इससे यार ये ऐसा क्यों दिखता है, ये इतना नैरो क्यों हो जाता है? इसको थोड़ा ब्रॉड करो. ब्रॉड करने में नुकसान है. प्लीज अंडरस्टैंड दैट.
वो नैरो इसलिए दिखता है या दिखना चाहिए बिकॉज ऑल डील्स आर नॉट गुड डील्स. प्लीज रिमेंबर, it's not about cracking all deals. And just this is an add-on piece of knowledge for you, slightly related but unrelated topic: sales. So we measure the effectiveness of our sales teams on the number of deals they've done. Utter stupidity, sorry to use the word. It should be the number of profitable deals they've done. Number of good deals. It's not just about selling. Any product in this world, even if it's, जैसे मुझे याद है हमने कुछ साल पहले एक बिल्डिंग मटेरियल्स कंपनी के साथ काम किया. सिंस यू आर टॉकिंग मार्बल्स, यार उनकी टीम जाती थी जाके बट डीलर साइन अप करती जा रही. उनका इंसेंटिव जुड़ा हुआ था. अब ना तो वो डीलर उस टाइप के जो प्रोडक्ट रख पाए, ना उनके साथ डील सही तरीके से क्रैक हो रही है. प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट और बी माइनस डीलर्स. जो सेल्स लीडर है वो कह रहे मैं आपने जो बोला था वो मैंने कर दिया, ना वो पेमेंट टाइम पे दे. These are bad deals. You're wasting your time. Cracking good deals takes time, and the funnel is very sharply pointed towards the bottom. A good quality business, a well-run business, runs on selecting the right deals. And you must again develop the confidence to say no to deals. जो आप चीज़ बोल रहे हो ना, अगर कोई इंसान कितना भी बेचने के बाद आपकी क्वालिटी को अप्रिशिएट नहीं कर पा रहा, unless and only you're absolutely desperate to get rid of your stock, please don't get into the deal, because उस डील में सारे डिससेटिस्फाइड होंगे. सबसे पहले आप डिससेटिस्फाइड होगे, तो यू स्टार्ट कटिंग कॉर्नर्स. The moment you start cutting corners, the client will become dissatisfied, and bad word spreads in the market. एक तो ये नेगेटिव वर्ड आपके लिए हो गया कि ये लोग सस्ते में भी कर लेते हैं काम, तो वो एक बार फैल गई खबर, सस्ते डील्स ही आएंगे फिर. और एक ये हो गया कि ये काम अच्छा नहीं करते यार, सस्ता बोलते हैं बट क्वालिटी ठीक नहीं है, तो नेगेटिव टेस्टिमोनियल्स. So one of the important things is to pick up which deal do you really need to negotiate on. Is it really a deal worth your time and effort and money? Because people spend months and months and months on negotiating something very important, only to figure out it was not a good deal. Deal evaluation पहले कर लो ना, फिर negotiation होनी चाहिए. जैसे investors भी होते हैं, venture capitalists also. These days you're very familiar with the investing ecosystem. Most of you are startup investors. Negotiate करने से पहले यार डील की बात करो ना, डील ठीक है कि नहीं है. कई बार हम इन्वेस्टर मीटिंग में होते हैं और मान लो पिच हो रही है, वी आर मोर वरीड अबाउट कि यार ये पैसे ज़्यादा मांग रहे हैं, स्टेक बहुत कम दे रहे हैं. दैट्स नॉट द पॉइंट, दैट्स नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ये डील आपकी थीसिस में फिट होती है कि नहीं होती है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. व्हाट इज योर इन्वेस्टमेंट थीसिस? आपने कहा था कि मैं टेक कंपनीज में इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन आप इन्वेस्ट कर देते हो किसी कंप्लीटली नॉन टेक बर्गर वाली कंपनी में, तो थीसिस मैच नहीं हुई. यू स्टार्टेड विद अ प्लान बट यू वेंट ऑफ द प्लान. दैट इज द बिग प्रॉब्लम. So negotiation begins once there is a deal on the table. It doesn't begin after or before. Are we on the same page? Yes. Right. Which is why ये जो part है agreed upon outcomes वाला, agreed upon desirable outcome, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है.
दोनों के आउटकम्स डिफर करेंगे. आपके आउटकम्स में भी ओके कम से कम इतना तो प्रॉफिट होना चाहिए. अगर इतना जीपी नहीं है तो नहीं लेना. ये आपका आउटकम, विच मीन सर्टन प्राइस एट विच सर्टन टर्म्स ऑफ द डील कि भाई ये पेमेंट टर्म्स है, ये अपना क्रेडिट कॉस्ट निकाल लिया आपने, सब कर लिया. और दूसरी साइड पे अग्रीड आउटकम क्या है कि ये सारा क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए, इस तरीके से काम होना चाहिए, टाइमलाइंस होनी चाहिए. सो यू बेसिकली बिफोर यू स्टार्ट नेगोशिएटिंग मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द आउटकम्स. क्लाइंट को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, कागज़ पे लिख लिया, टेबल बना दिया, एक 2 कॉलम, कॉलम 1 कॉलम 2. And it makes sense to let the customer know, trust me, how much money you want to charge and make upfront. तब चाहे आप उन्हें डायरेक्टली बोलें कि यार इससे कम में मैं काम नहीं करता, upfront बोलोगे तो ज़्यादा बेटर. No surprises later after spending so much time. It's better कि अगर स्टार्टिंग में ही वो मना कर देना यार ये तो बजट ही नहीं है, ये हो ही नहीं पाएगा, कोई बात, it's fine. It was a bad deal to work on. We are not the right partners for you. It's okay to accept that. Yeah. So there are some 7 elements of negotiations that describe the essential tools needed to identify our goals, prepare effectively to minimize surprises, and take advantage of opportunities as they arise. सबसे बड़ी मजेदार बात ये कि जब आप नेगोशिएट कर रहे होते हो, कई बार वो नेगोशिएशन करते करते अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं. सो यू नीड दैट लिटिल बिट ऑफ एन एजाइल माइंडसेट व्हेन यू डूइंग इट. सो लेट्स लुक एट द 7 एलिमेंट्स वन बाय वन. थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, जो याद रह गया रख लेना. सबसे पहला इंटरेस्ट. So interests are these fundamental drivers of negotiation. Your basic needs, wants, motivations that guide what we say and do. आप इस डील से चाहते क्या हो has to be written down. Sometimes it's not profit. At least not in this particular deal. It could be I want to start a relationship with this person. It's a logo I want in my portfolio. But वो सिर्फ शॉर्ट टर्म नहीं सोचना है, लॉन्ग टर्म में क्या चाहते हो, because that will affect the way you negotiate. So then you can tell the client, the only reason why I'm working with you on these terms is because I expect at least 5 crores of business every year. Will you give? अरे नहीं यार क्या बात कर रहे हो, anything, छोड़ दो. Right? So जो आपका इंटरेस्ट है उस डील या उस क्लाइंट से, वो सबसे पहले तो लिखित में होना चाहिए आपके पास. नेगोशिएशन करने जाते हैं या कोई डील करते हैं तो तैयारी करके जाना चाहिए कि आप चाहते क्या वैसे. If you're getting nothing in terms of what you want from this, then sometimes you also have to, or let's say you entered a deal, then sometimes you have to negotiate an exit. हम जब नेगोशिएशन को सोचते हैं तो हम सिर्फ एंट्री के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट नेगोशिएशंस होती हैं जो एग्जिट नेगोशिएशंस होती हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी. नेगोशिएशन डील की एंट्री में भी होती है, एग्जिट में भी होती है. एग्जिट वाली नेगोशिएशन बहुत कुछ बचा देती है अगर ठीक से की जाए. So, on a fun fact, I read an article कि जी. आजकल marriages में हाँ before entering a marriage in this open world, multi cities के अंदर वो bond बन रहा है. हाँ, So bond is what? It is an exit negotiation. इट्स एन एग्जिट क्लॉज. हाउ विल द एग्जिट बी डन? पहले से एग्री कर लिया, वो नेगोशिएशन में भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट में भी आ जाता है. बट कई बार क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट में आने के बावजूद जब एग्जिट का समय होता है ना, वो कभी भी प्लेजेंट नहीं होता Hmm. इफ इट्स एन अनप्लान्ड एग्जिट.
you still need to have the right kind of skills. You can't go back and say ये contract ये कहता है. Of course it's useful, very very useful. अगर कोई ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट यूज़ किया जाएगा. बट अगर बातचीत करके एक ऑनरेबल एग्जिट मिलती है दोनों पार्टीज को, अगेन वेल अग्रीड अपॉन आउटकम्स, एग्जिट से किसको क्या चाहिए वो मिल जाना चाहिए उसको, तो फिर अच्छी क्लीन एग्जिट हो जाती है विदाउट स्ट्रेस. यू सी द पेपर वर्क में टेक अ लिटिल बिट टाइम, डोंट वरी अबाउट दैट, इट फॉलोज इट्स ड्यू प्रोसेस. But negotiations have to be hyper smooth, very stress free. And if you want that to happen, they have to be really well planned. This requires planning. ये ऐसा काम है जो मतलब ये नहीं कि अरे मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है सीधा जाएंगे बात करके आ जाएंगे. नहीं, don't do that. Prepare well. If you have no bandwidth, आपका कोई EA होगा या कोई भी टीम मेंबर होगा, कोई स्ट्रेटेजिक प्लानर होगा, तो यार ये डील हो रही है, ये मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, इस पर मुझे ग्राउंड वर्क करके दो, मेरा ये चार्टर बना के दो नेगोशिएशन का. उसको हम डिस्कस करेंगे 5 मिनट बिफोर आई सिट एंड मीट दीज पीपल. एंड रिमेंबर इट्स नॉट अ वन मीटिंग नेगोशिएशन, रिक्वायर्स मल्टीपल इंटरेक्शंस, मल्टीपल एक्सचेंजेस ऑफ ईमेल्स. So after interest legitimacy, we are likely to accept offers that we deem fair and legitimate during the negotiation and reject those that we feel are unfair, even if they leave us objectively better off. Researchers have identified 3 norms of fairness: equality, equity, and need. If you feel that a deal is not fair, drop the deal. Both ways. Both ways, yes. Never get into an unfair deal, because the problems start after signing the deal. You will be constantly unhappy in executing your part of the bargain. क्योंकि दोनों को अपने अपने काम करना है ना, एक बार डील होगी तो. तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, बट ये हम लगातार ये गलतियाँ करते हैं, लगातार. Right. Attractiveness of a deal or attractiveness of a client name sometimes pushes you into doing the deal, only to regret later. No good faith और past experience भी चलता है क्या? Of course, past experience के basis पे आप बता पाते हो. जैसे हमारे साथ ये हुआ, without naming the client, very large company, big unicorn, not even a small unicorn. एक प्रोजेक्ट हमने उनके साथ 4 साल पहले किया. 1.5 महीने का प्रोजेक्ट था जो 8 महीने में ख़त्म हुआ. एंड यू नो, फॉर अ प्रोजेक्ट कंपनी यू मेक लॉसेज एवरी मंथ इफ यू डोंट कंप्लीट और नॉट एबल टू कंप्लीट. पैसे बहुत ज़्यादा नहीं थे, पर अच्छा हुआ, उनके हिसाब से बहुत अच्छा हुआ. उनको जो चाहिए था वो मिल गया, मुझे जो चाहिए था वो नहीं मिला. सो क्लाइंट इज़ हैप्पी, आई एम अनहैप्पी. सो अग्रीड आउटकम्स पे नहीं थी वो. 4 साल के बाद, बिकॉज दे वर वेरी हैप्पी, दे कॉल्ड अस अगेन कि अब दोबारा रीब्रांडिंग कर रहे हैं हम, कंपनी और बड़ी होगी. तो हमने कहा बट लास्ट टाइम हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था. अच्छा, हाउ कम? हमारा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था. तो मैं कहा नहीं ऐसे ऐसे डिले हो गया था, काफ़ी हमारा नुकसान हो गया था, तो पैसे हम थोड़े ज़्यादा लेंगे. नहीं, पैसे क्या, इतना बड़ा ब्रांड नेम है, ये है वो है. somehow according to them they paid us much more, but based on our reference point we were still getting paid about 1/3 of what we deserve to be paid. उनके हिसाब से वो 3 गुना दे रहे हैं जो हमें देने चाहिए, लेकिन गैप है ना. उनके लिए क्या सक्सेस है वर्सेस मेरे लिए क्या है, a huge gap. But because again the brand name was so big, the people who were dealing were so senior, globally respected leaders, so they cajoled us into the deal. Again. Right. Past experience की बात है. मतलब वो जो कहावत है ना, once bitten twice shy, वो shy होने के बाद भी हमने got into it.
ये होता है. And again, a very regretful situation. Client is very happy, right? And we are constantly unhappy, and we keep complaining. हम बोलते रहते हैं उनको. तो जो फाउंडर ऑफ द कंपनी है, तो उसको बोला कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे, बस अब छोड़ना चाह रहे हो. अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे? गुड फ्राइडे था, छुट्टी का दिन. ऑफिस आओ सुबह 9 बजे, हम बात करेंगे. अब इतना बड़ा फाउंडर, अगर वो ना बुलाता तो डील खत्म थी. अब बुला लिया तो समझ आ गया कि ये फिर रोक लेगा. ये वो आया सुबह मैग्नोलिया से, वहाँ रहता है, सो ब्रेकफास्ट लेके आ गया अपनी टीम के साथ टू गेट अस बैक इनटू द डील. नो विल गिव यू a special bonus and we'll do this and this, we'll make sure you don't lose money. Again, you're trapped. Now you renegotiate a deal in such a way कि यार अब काम करने का तरीका चेंज करेंगे, अब ऐसे करेंगे वैसे करेंगे. फुल लेंथों के साथ दोबारा काम शुरू किया. 2 महीने और निकल के और कुछ नहीं हुआ. बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन कल्चर्स डोंट चेंज ओवरनाइट. उनकी कंपनी में वो कल्चर ही नहीं है कि कोई वेंडर पैसे कमा पाए. सो 2 महीने के बाद मैंने कहा अब मीटिंग रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, अब सीधा मेल ही लिखेंगे दैट वी हैव डिसाइडेड नॉट टू कंटिन्यू एंड वी रियली वांट टू थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी. राइट, वो सब किया. मैंने लिखा ये हमारे ड्यूज हैं जो बनते हैं, और ये आपके डिलीवरेबल्स हैं जो हम ऑलरेडी काम कर चुके. कैन यू बिलीव इट? इतना घटिया कल्चर, इतनी बड़ी कंपनी. They took 1 month to just respond to that email after regular follow-ups. Then they ended up paying us half the money for what we asked. It's not worth it. Just take it and goodbye. Sir, but मतलब मेरा experience ये है कि जब whenever we enter in such a deal, there is always something we feel that we may get value in, not monetary wise. बट हमें लगता है जब हम बड़े प्लेयर से काम करते हैं, वी फील दैट मे बी इट मे ऐड वैल्यू टू आवर क्लाइंट बेस. That's exactly. That's exactly. हमारी नीड तो है ना उसमें, आवर इंटरेस्ट इज देयर. Interest is there, right? But इन द एंड वी फाइंड आउट मतलब इफ वी कंपेयर विद द रिजल्ट्स, it's the, बिना it's करे the कैसे stage. पता लगेगा? It's the stage of your. You see, every day you are a new you, राइट. right? So, the first time when I signed that deal, I think it wasn't a bad idea राइट. because I wanted that logo in my portfolio. एग्जैक्टली. Second time क्यों किया? अगेन यू वांटेड दैट लो. लोगो तो ऑलरेडी आ गया. लोगो आ गया. सी, लालच आ गया कि शायद अब इस बार ये अच्छे से काम करेंगे, बड़ी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं और खूब सारे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे. But second time also, the culture had not changed because the people at top had not changed. मिड लेवल, नेक्स्ट लेवल, पूरी टीम चेंज हो गई थी. उन्होंने टीम पे ब्लेम डाल दिया कि नहीं टीम ठीक नहीं थी, इस वजह से डिले हुआ. Whereas if I asked myself intuitively, अगर मैं अपने आप से सच्चा रहता, तो I knew it that it was not the team's fault. It's the leadership. Always the leadership. अगर आपको किसी भी क्लाइंट से अगर टाइम पे पेमेंट नहीं मिल रही, तो फाइनेंस मैनेजर की इसमें कोई गलती नहीं है. It's the instructions which are coming from the top. How to deal with your vendors, when to pay them. टॉप से ही डिसाइड होता है. CFO भी नहीं डिसाइड करता वो. But we still get into those deals. And we learn hard again. अब चक्कर क्या है? बड़ा मुश्किल है ना यार. अब वो इतना बड़ा फाउंडर है, इतना फेमस आदमी है, वो दोबारा मुझे अब डायरेक्टली कॉल कर देगा. You realize something that yes, by getting हम इनके साथ जितना टाइम या the way we'll work with them, कहीं ना कहीं आपको वैल्यू दिखती है, the way you enter it. ग्रीड, वैल्यू और ग्रीड में बहुत अंतर है. Okay. वैल्यू इज अ वेरी ऑब्जेक्टिव टॉपिक. जी सर. ग्रीड इज अ वेरी इमोशनल टॉपिक. हाँ जी सर. अगर मैं उस डील को ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट करता जी. इन सारे पैरामीटर्स पे, तो मैं इस डील में कभी घुसता ही. उनका तो पता नहीं, मैं वो वाइफ को लेकर आपके साथ. But there was a certain sense of greed which kicked in. हाँ हाँ.
I have asked him. It's a big name, growing a lot. ये हमें भी कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे. नहीं फोर्स नहीं. कहते हैं बैठ जाओ. They don't do it because that's not their mental agreed objective. मेरा agreed objective मेरे माइंड में हो सकता है कि ये मुझे कैरी फॉरवर्ड करेंगे. जी सर. जी. Right. They will take me along, but उनके दिमाग में I'm insignificant. उनके दिमाग में they're doing us a favor. The first time when I sat on the table and said I don't want to work with you, थोड़ा you know what he पहले said? better है. अरे vendors are lining up to work with us. Why are you not willing to? जी सर. तो मुझे उन्हें फिर एग्जांपल्स देने पड़े कि आपसे भी बड़ी कंपनी से ज़्यादा हम काम करते हैं जी सर. थैंक यू सर. और बड़े अच्छे से करते हैं, बट ऐसे कोई हमें ट्रीट नहीं करता. सर ठीक है. ओह अच्छा, सो दे हैड सम रिस्पेक्ट बट नॉट इनफ. राइट, सो देयर इज ऑलवेज दिस इशू ऑफ वेदर द पर्सन ऑन द अदर साइड इज रियली इंटरेस्टेड इन योर ग्रोथ और नॉट. ये बड़ा ज़रूरी है. आप किसी भी नेगोशिएशन में घुसें, राइट, दूसरे साइड पे जो पार्टी है उसके मोटिवेशंस आपके साथ अलाइन होने बड़े ज़रूरी हैं. एंड इफ यू आर नॉट श्योर, आस्क दिस क्वेश्चन. आई शुड हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू देम. अच्छा ये प्रोजेक्ट तो ठीक है, आगे और क्या मिलेगा? इन हाइंडसाइट दिस इज व्हाट आई वुड हैव डन डिफरेंटली. And if you would have committed and not given you the future projects? दैट स्टिल एटलीस्ट अलाइनमेंट तो थी ना कि हमारी एक्सपेक्टेशन उन्होंने हाँ बोला. बैड एक्सपीरियंस कोई बात नहीं, तब भी एग्जिट ही होता. The same experience with me in the last 10-15 days because it's very big name in the Godrej coming with the projects. हाँ जी, तो उनका पेमेंट टर्म्स हम कभी टर्म्स सूट नहीं करता. नहीं करता. तो उन्होंने कहा कि इसी टर्म्स पे काम करना है, बट वही ग्रीड मेरा है कि उन्होंने कहा कि हमारे पास नॉर्थ इंडिया में कोई पर्सन ही नहीं है काम करने के लिए. सो इफ यू डू विद अस देन डेफिनेटली नेक्स्ट फ्यूचर ऑल प्रोजेक्ट विल गिव यू दैट. तो यहाँ तो ग्रीड भी आई, उनकी टर्म्स पूरी हो रही हैं, पर मेरी तो कोई टर्म्स पूरी नहीं हो रही सिवाय ग्रीड के. कि ठीक है, दूसरा है कि ब्रांड नेम मिल रहा है मुझे, आई एम वर्किंग विद गॉडरेज. तो Trap है. नेगोशिएशन तो नहीं पूरी हुई वो देखा जाए तो. इक्विटी नहीं है ना. देखो डील में इक्विटी होनी बहुत ज़रूरी है. हाँ, राइट, इक्वालिटी, इक्विटी एंड नीड, इक्विटी नहीं पूरी हुई. ये बड़ा ज़रूरी है कि What- डील what- फेयर होनी बहुत ज़रूरी है. हम क्या करें इस लेवल पे भी. यार इफ़ यू आस्क मी,